चलो होमवर्क किया है, संभालिए। Listen now. बैठना उधर ही, ए भाभी उधर नहीं, इधर इधर इधर। Now मोबाइल ले लीजिए भाभी से। चलो listen now. 19th sum, check the answer straight. होमवर्क नहीं किया तो 200 रुपए रेडी रखना। Madhura started business with cash 3 lakhs. Add to asset, add to capital 3 lakhs. Is that right? Purchase goods worth 75,000 on credit from Swara. Add to asset 75 and add to liability 75. Purchase machinery worth 25,000. This is for cash. So plus minus 25,000 in assets. Plus minus 25,000 in assets. Bought personal furniture of 30,000 into business. Add to assets. Add to capital 30,000. Is that right? Deposited 1 lakh into Bank of Maharashtra. Plus minus 1 lakh in assets. Plus minus 1 lakh in assets. Got it? Sold goods worth 50,000 for cash. Plus minus 50,000 in assets. Stock बेचा मतलब स्टॉक घटा और कैश बढ़ा. Plus minus 15 assets. Paid 2,500 for advertisement. Minus 2,500 in assets and minus 2,500 in capital because it was an expense. Because it was an expense. Got it? Final equation बोलो, आंसर बोलो क्या है? 4,02,500 is equal to 75,000 plus 3,27,500. Is that right? Any doubts? First one, any doubt? Second question, 20th. Aishwarya started business with a bank balance of 2,25,000. Add plus 2,25,000 in assets and plus 2,25,000 in capital. Purchase furniture worth 60,000 by issuing a check. Plus minus 60,000 in assets. Is that right? Purchase goods of 30,000 by issuing a check. So plus minus 30,000 in assets. बराबर है? Plus minus 30,000 in assets. Then withdrawn 50,000 for personal purpose. Minus 50,000 in assets and minus 50,000 in capital. Is that right? Correct? Purchase a chair worth 15,000 on credit. Plus 15,000 in assets and plus 15,000 in liabilities. Is that right? Then purchase goods worth 35,000 on credit. So plus 15,000 in assets, stock बढ़ा, and plus 35,000 in liabilities. And spent 10,000 on repairs and maintenance. So it is minus 10,000 in assets and minus 10,000 in capital because repairs are expense. Right? What's your final equation? 2,15,000 is equal to 50,000 plus 1,65,000. Right? सब प्लस माइनस करने की जगह मैं सीधा 0 लिख दूं तो चलेगा? नहीं चले. प्लस 50,000 माइनस 50,000 दिखाना पड़ेगा, इफेक्ट दिखाना पड़ेगा. ओके. 21st, Yasmin started business with cash 1,75,000. Add to assets 175, add to capital 1,75,000. Is that right? Then purchase a machinery of 50,000 on credit from Parveen. Add 50,000 to assets, add 50,000 to liabilities. Is that right? Creditor है Parveen. Creditor मतलब liability बढ़ा. बराबर है? Then purchase goods worth 40,000 for cash. तो plus minus 40,000 in assets. Stock बढ़ा और cash घटा. बराबर? Bought personal laptop of 35,000 into business. अपना 35,000 assets में add and 35,000 capital में add. क्योंकि personal वाला आ रहा है business. बराबर है? Then goods lost by 5,000. So minus 5,000 in assets and minus 5,000 in capital. Minus 5,000 in assets and minus 5,000 in capital. Is that clear? Homework किया? 19, 20, 21 3. संभाल के. Minus 5,000 in assets and minus 5,000 in capital. Is that right? Moving ahead. Sold goods costing 32,000 at a profit of 8,000 on credit to Armin. So
पहले तो आपका डेटर क्रेडिट में बेचा है तो एसेट बढ़ेगा बाय 40, स्टॉक घटेगा बाय 32, तो प्लस 40 इन एसेट्स माइनस 32 इन एसेट्स एंड प्लस 8,000 इन कैपिटल बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, प्लस 8,000 इन कैपिटल. गॉट इट? पेड टू अ सप्लायर 25,000, तो सप्लायर टू कैश, लायबिलिटी भी घटा और कैश भी घटा, तो लायबिलिटी में से भी माइनस और कैश से भी मतलब एसेट से भी माइनस, अमाउंट इज 25,000. फाइनल इक्वेशन, सप्लायर को पे ऑफ किया है तो सप्लायर टू कैश, लायबिलिटी घटा और कैश एसेट घटा. हाउ कम कैपिटल? वाई कैपिटल? ये तो किया भी था हमने 22nd जो आपने क्लास में किया था उसका लास्ट ट्रांजैक्शन यही था. देखो सप्लायर टू कैश, लायबिलिटी भी कम हुआ और एसेट भी कम हुआ. कैन यू सी दैट? हेलो, तो वही तो है क्रेडिट. अरे भाई क्रेडिटर को चुकाया ना, क्रेडिटर को पे ऑफ किया तो क्रेडिटर भी घटा और कैश भी घटा, तो लायबिलिटी से भी माइनस और एसेट से भी माइनस 25,000. व्हाट्स योर फाइनल इक्वेशन? 2,38,000 is equal to 25,000 plus 2,13,000. Is that correct? Sorry, कैपिटल नहीं, लायबिलिटी और एसेट. सप्लायर टू कैश, लायबिलिटी घटेगा और कैश एसेट घटेगा. हाउ लायबिलिटी? डेटर है ना, डेटर और एसेट बेचा है, खरीदा होता तो क्रेडिटर, तो डेटर एसेट बढ़ा और स्टॉक एसेट घटा, प्लस 40 माइनस 30 प्लस 18 मिला. ये अर्थ लाठी. इज द होमवर्क क्लियर? एंड किया होमवर्क? बरो दोस्त. और किसने नहीं किया होमवर्क? और कौन है वो महान इंसान? भव्या ने नहीं किया. बरो दोस्त. और बरो 205. एनीवन एल्स? भाविक ने किया? चलो, तेरा शक्ल सस्पिशियस है, 3 बार मेरे को पूछना पड़ता. चलो, now let's start with a new topic that's called subsidiary books. Okay, subsidiary books. Let's understand the concept. What are subsidiary books? Now you know how many books of accounts are there? Accounts के कितने books होते हैं to record the transaction? Please pay attention now. Second last class में look at the book. How many books of accounts you have got? 2 books of accounts, right? What are the 2 books you have learned? Journal and ledger. There are only 2 books of entries, journal and ledger. What is journal? Journal is the book of prime entry. The first record of any transaction goes into journal, right? Date wise करते हो आप. And after that you post every transaction into ledger. Ledger में आप हर एक transaction post कर देते हो अकाउंट वाइज. वो भी हमने बना के देख लिया, अपने टेस्ट पे लिखा हुआ. सो जर्नल आपका डेट वाइज रिकॉर्ड करता है, डेबिट क्रेडिट रूल्स के हिसाब से. एंड लेजर आपका अकाउंट वाइज डेटा दिखाता है, फिर बैलेंस होता है हर महीने क्या, एंड रिजल्ट दिखता है आपको. 2 ही बुक्स है, राइट? प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स एंड सेकेंडरी बुक, फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री एंड फाइनल बुक ऑफ एंट्री. How many books of accounts you are having? Just 2, journal and. So what are subsidiary books? What are subsidiary? Are these some third book of accounts or third book of entry? तो ऐसी कोई बात नहीं. सीन क्या है, जब बिजनेस छोटा होता है, when the size of the business is small, then all the transactions are entered in one सार्वजनिक journal, which you have learned just now. जब बिजनेस का साइज जो है छोटा होता है, स्मॉल बिजनेस, they record all types of transaction in one single journal. जो हम करते आ रहे थे अब तक, जो आप सिंगल जर्नल करते आ रहे थे, वो सिंगल जर्नल, but that is suitable for small business organizations. Now, as and when the size of the business grows, when the size of the business increases, size of the business बढ़ती है, एक्टिविटीज बढ़ेंगी, ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, एरिया बढ़ जाएगा, ऑफिसेस बढ़ जाएंगे, ब्रांचेस बढ़ जाएंगे, तो क्या सीन होगा कि ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हो जाएंगे, अलग अलग, मतलब सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे साइज में. ऑल द ट्रांजैक्शंस विल इंक्रीज, राइट? तो एक ही जन को अगर मैं सारे ट्रांजैक्शंस दूं रिकॉर्ड करने को, तो वुड इट बी इजी और टफ फॉर इट? वेरी टफ. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग इस जर्नल के टुकड़े कर देते हैं. We break this journal. We divide this journal into small parts. अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं उसको. वो जर्नल ही है, खाली जर्नल के टुकड़े कर दिए. We break down that journal into various small journals. ऐसा क्यों? ऐसा करने से आपका ही काम इजी हो जाएगा, आपका ही स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगा. व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? देखो, जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अकेला ओनर है, अकेला मालिक है, तो मैनेजर भी वही है, एमडी भी वही है, चेयरमैन भी वही है, फाइनेंस भी वही संभालता है, मार्केटिंग भी वही संभालता है, एडवर्टाइज कैसे करने का गुड्स को वगैरह वगैरह, डीलर सप्लायर से बात भी वही करता है, पैसे का भी व्यवहार वही देखता है, फाइनेंस भी वही देखता है, एचआर का भी डिपार्टमेंट वही संभालता है, मतलब हायरिंग करना है, नटुका का बागा, ये छोटा बिजनेस, सारा एक्टिविटीज खुद ही कर रहा है. तो फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, तुम्हारा सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, एमडी सीईओ का काम, पॉलिसी मेकिंग, सब वही करता है. बट एज एंड व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रोज, अभी रिलायंस कंपनी है, तो क्या मुकेश अंबानी सारा काम कर रहा होगा? पॉसिबल है उसके लिए इतना बड़ा जायंट संभालना अकेले? नहीं. तो वो क्या करता है? डिपार्टमेंट्स बना देता है. व्हाट डज ही डू? ही मेक्स द डिपार्टमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट्स, राइट. वो एक डिपार्टमेंट बनाएगा फाइनेंस का, कि भाई तू पूरा फाइनेंस हैंडल कर. एक डिपार्टमेंट होगा खाली परचेज का, वो खाली परचेज हैंडल करेगा, परचेज रिटर्न. एक होगा पूरा सेल्स डिपार्टमेंट, वो सेल्स का पूरा काम हैंडल करेगा. एक होगा मार्केटिंग, वो देखेगा एडवर्टाइजमेंट, पोजिशनिंग, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, वो सब मार्केटिंग हैंडल करेगा वो डिपार्टमेंट. एक होगा एचआर का डिपार्टमेंट, वो खाली हायरिंग एम्प्लॉय को हायर करना, ट्रेन करना, सैलरीज का पार्ट, वो सब एचआर डिपार्टमेंट देख लेगा. तो इससे काम अच्छे से होगा कि खराब होगा? अच्छे से होगा, क्योंकि अगर आप एक बंदे को एक स्पेशल डिपार्टमेंट दे देते हो तो वो उसी पे फोकस करेगा और ऑब्वियसली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, काम अच्छे से होगा, एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. आप खुद को ही देखो, आप मल्टीटास्क करते हो और उसके जगह एक ही टास्क पे फोकस करो तो काम आप अच्छे से कर सकते हो कि नहीं? ऑब्वियसली अच्छे से कर सकते हो. तो हमेशा फोकस हेल्प्स इन डूइंग द वर्क बेटर. तो कभी भी लाइफ में भी याद रखना, कोई भी करियर बना रहे हो तो सीखना सब कुछ, लर्न एवरीथिंग, लेकिन एक फील्ड पे फोकस मजबूत रखना. एक फील्ड पे इतना प्रोफिशिएंसी डेवलप कर लेना कि कोई आपको उसमें बीट ना कर पाए, ऐसा लेवल डेवलप करो तो फिर लाइफ सेट है. सिंपल एज दैट. सीखना सब कुछ. अभी डॉक्टर्स भी होते हैं, दे लर्न एवरीथिंग, देन दे स्पेशलाइज. कोई पीडियाट्रिशियन बन जाता है, कोई ऑर्थोपेडिक्स में जाता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट हो जाता है, कोई लिवर लंग्स का हो जाता है, कोई पैनैक हो जाता है. तो काफी सारे अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं. इंजीनियरिंग में भी होता है, जनरल इंजीनियरिंग सब पढ़ते हैं, फिर कोई मैकेनिकल करता है, कोई सिविल कंस्ट्रक्शन में जाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता है, कोई सॉफ्टवेयर में जाता है. सो आप अलग अलग फील्ड में लर्न सब कुछ करो, लेकिन एक फील्ड ऐसी रखना, एक कोई भी कोर फील्ड रखना डिसाइड करके, जिसमें मास्टरी, मतलब तगड़े अर्जुन बन जाने का, उसमें ऐसा बन जाने, तो आपका लाइफ सेट है. फिर टेंशन लेने वाली बात नहीं. करियर जो बोलते हैं करियर सेट है, वो तभी सेट होगा जब एक चीज पे, जो भी चीज आप चूज करो, आपका इंटरेस्ट हो जो भी हो चूज करना, बट एक चीज में शुड बी डैम प्रोफिशिएंट. आप उसको आप उस फील्ड में बीट ना कर पाए, ऐसा बनना है. क्लियर? तो ये करना बहुत जरूरी है. तो स्पेशलाइजेशन से क्या होता है? काम अच्छे से भी होता है, प्रोफिशिएंटली होता है और रिजल्ट अच्छे आते हैं. आपका भी काम इजी होता है, रिजल्ट्स भी अच्छे हो जाते हैं. टू फोल्ड एडवांटेज. सो बिजनेसेस भी यही करते हैं. बिजनेसेस क्या करते हैं? जब छोटा बिजनेस होता है तब एक जर्नल से काम चल जाता है, जो आप सीखा था आपने फर्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन वन जर्नल. व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस, तब एक ही बंदे को सारा जर्नल दिया जाए तो पागल हो जाएगा, उसका काम भी अच्छे से नहीं होगा. तो बिजनेस क्या करता है? एक जर्नल को डिवाइड कर देता है इनटू वेरियस पार्ट्स, टुकड़े कर देता है, छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, छोटे छोटे जर्नल बना देता है. क्यों करता है? स्पेशलाइजेशन. एक बंदा एक पर्टिकुलर छोटे जर्नल को फोकस रखेगा तो वो ट्रांजैक्शन परफेक्टली रिकॉर्ड कर पाएगा. तो इन जो छोटे छोटे टुकड़े आपने किए हैं जर्नल के, इनको कहा जाता है सब्सिडरी.
These parts of journal are called as subsidiary. तो अब ये सिंगल जर्नल नहीं बचा, सॉरी ये चला गया और इसके जगह क्या आ गया, पार्ट्स आ गए, जर्नल के टुकड़े हो गए. इज इट क्लियर? इंस्टेड ऑफ वन जर्नल you have various small journals. These small journals are called subsidiary books. So what are subsidiary books? Subdivision of journal. Subdivision of journal. That is what is subsidiary books. तो subsidiary book कोई तीसरा या चौथा या पांचवा book of accounts नहीं है. What is subsidiary book? Primary book of accounts. Journal ही है. खाली एक journal के जगह बहुत सारे journals बना दिया, बराबर है? एक journal के जगह बहुत सारे journal. You pay fine now 200. Every day you are late. Every day. This is 4th time I am looking. Go sit. You have done the homework? Yes. Go sit. बल के जाओ. कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, समझेगा नहीं फिर क्या मतलब है? ऐसे ही करने का. आधा लेक्चर इंटरवल के बाद आने का, नेक्स्ट इंटरवल से पहले तक बैठने का. तो what are subsidiary books? Subsidiary books are nothing but subdivision of journal का parts. Is it clear? That's what is called subsidiary. Now how many parts are we supposed to do of this journal? कितने टुकड़े करने हैं? तो इसकी कोई लिमिट नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है. आपको करने उतने टुकड़े करो. आपके बिजनेस में जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसके लिए स्पेसिफिक जर्नल की जरूरत है, अलग जर्नल की जरूरत है, बना. तो आपकी मर्जी, आपको टुकड़े जितने करने आप कर सकते हो. बट प्रैक्टिकली भी देखा गया है और थ्योरी के लिए भी देखा गया है कि कितने टुकड़े जनरली किए जाते हैं. तो 7 पार्ट्स किए जाते हैं. कितने पार्ट्स किए जाते हैं? 7 पार्ट्स. 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से किए जाते हैं जर्नल के थ्योरी और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए. ठीक है. व्हाट आर दोस 7 पार्ट्स? नाउ फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज परचेज बुक. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज परचेज बुक. तो परचेज बुक एक टुकड़ा है जर्नल का, वन ऑफ द पार्ट ऑफ जर्नल, डिविजन ऑफ जर्नल, जिसमें आप क्या रिकॉर्ड करते हो, किस लिए बनाया गया ये टुकड़ा. इसमें आप एज अ नेम सजेस्ट परचेज, इसमें आप रिकॉर्ड करते हो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, 2 वर्ड याद रखना है, क्रेडिट एंड गुड्स. क्रेडिट एंड गुड्स. गुड्स और क्रेडिट वाले परचेज, कैश वाले नहीं. कौन से वाले? क्रेडिट. सर कैश वाले किधर होंगे? वो आएगा कैश, बताऊंगा. तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है. सर ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे कारण समझो. मैंने आपको बताया था, कोई ट्रेडर है, कोई बिजनेसमैन है, उसका सारा दिन मैक्सिमम ट्रांजैक्शन किसका होने वाला है? परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल. देखो सैलरी एक बार पे करोगे महीने में, रेंट एक बार करोगे, इलेक्ट्रिसिटी एक बार करोगे, एसेट एक बार खरीद लिया तो 10 साल के लिए काम नहीं है. तो बाकी पूरा दिन बैठे बैठे कर क्या रहे हो? बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, राइट? परचेज सेल, परचेज. तो उसके ही बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं. उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको परचेज और सेल करना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो मेजॉरिटी ऑफ द परचेज सेल कैसे होते हैं? कैश पे कि क्रेडिट पे? क्रेडिट पे. 90% ऑफ द परचेज सेल हैपेंस ऑन क्रेडिट बेसिस. इसके लिए इसको सेपरेट बुक ही बना दिया, परचेज बुक. एक बंदे को रख दिया परचेज मैनेजर, तो संभाल परचेज बुक. तो क्रेडिट परचेज की काफी चंक ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसके लिए एक सेपरेट बुक डेडिकेटेड है. समझा? तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स क्या रिकॉर्ड होगा इसमें? सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ, उसकी काफी सारे एंट्रीज है. कैश परचेज होते बहुत कम होता है, क्रेडिट वाले ज्यादा होते हैं. दूसरा बुक होता है सेल्स बुक. दूसरा बुक होता है सेल्स बुक. क्या रिकॉर्ड होगा इसमें? सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स. क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स. वापस वही कंसेप्ट, सेल भी ज्यादातर क्रेडिट पे होते हैं. तो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, बेचा हुआ गुड्स सोल्ड, नॉट कैश वाले. विच वाले? क्रेडिट वाले. क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स. इज दिस क्लियर? एंड व्हाट अबाउट कैश सेल? वो अलग बुक है उसके. ये खाली किसके लिए? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स. इज दिस पार्ट क्लियर? अंडरस्टूड? तीसरा और चौथा बुक, इनका नाम दिया गया है परचेज रिटर्न बुक,
परचेज रिटर्न्स बुक एंड सेल्स रिटर्न्स। परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न कौन से बेसिस पे होता है, कैश बेसिस की क्रेडिट क्रेडिट बेसिस पे होता है। रिटर्न्स आर जनरली ऑलवेज ऑन क्रेडिट, बराबर है, रिटर्न्स आर जनरली ऑलवेज ऑन क्रेडिट। आप रिटर्न करोगे तो कोई पैसे देता नहीं है, आपको कोई रिटर्न करे तो आप पैसे देते नहीं हो, दे आर ऑन क्रेडिट बेसिस नॉर्मली। तो परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, दे आर ऑन क्रेडिट बेसिस, पहले ही पता है। और रिटर्न किसके होते हैं, गुड्स के ही होते हैं। तो इसमें क्या रिकॉर्ड होगा, गुड्स रिटर्न बाय अस, गुड्स रिटर्न बाय अस। और इसमें क्या होगा रिकॉर्ड, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर मतलब डेटर। तो जो डेटर अपने को रिटर्न करता है उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं, और हम रिटर्न करते हैं उसको परचेज रिटर्न, वैसे भी क्रेडिट पर ही होता है। तो वो दोनों ये बुक्स में चले जाएंगे। तो पहले 4 बुक्स होली किसको डेडिकेटेड है, गुड्स 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 गुड्स, परचेज सेल परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, ऑल 4 आर ऑन क्रेडिट और कैश, क्रेडिट। तो पहले 4 बुक का कोर क्या है, क्रेडिट एंड गुड्स, 2 वर्ड याद, क्रेडिट and goods, all for credit transactions of what, goods। Purchase of goods on credit, sale of goods on credit, purchase returns वो क्रेडिट पर ही होता है, सेल्स रिटर्न वो क्रेडिट पर ही होता है। यहां तक समझ में आया पक्का। 5वां बुक होता है आपका कैश बुक, 5वां बुक होता है आपका कैश बुक। एज द नेम सजेस्ट कैश, इसमें क्या रिकॉर्ड होता है, ऑल कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस, all cash or bank transactions of big values, all cash and bank transactions of big values। तो सारे कैश ट्रांजैक्शन, सारे कैश, कैश आया कैश गया, इसमें कैश परचेज ऑफ गुड्स हुआ है ना, माल खरीदा और पैसा दिया, तो वो कौन से बुक में जाएगा, कैश। माल बेचा और पैसा आया कैश से, तो वो कौन से बुक में जाएगा, कैश। एक्सपेंस आपने कैश में पे किया, इनकम आपने कैश में रिसीव की, एसेट आपने खरीदा कैश बेसिस पे, एसेट आपने बेचा है कैश बेसिस पे, कैश कैश कैश। तो कैश के साथ चेक भी आ गया, ऑनलाइन भी आ गया, एनईएफटी, आरटीजीएस, बैंक, सब कुछ आ गया। बेसिकली रोकड़ा आया रोकड़ा गया, ये कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा, कैश। दिस विल बी रिकॉर्डेड इन कैश। लेकिन मैंने यहां पे लिखा है बिग वैल्यूज। अब बिग क्या स्मॉल क्या है, डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। किसी के लिए 1 लाख बड़ा है, 1000 छोटा है, किसी के लिए 1000 बड़ा है और 100 रुपीज छोटा है, तो वो डिसाइड कर लेगा। तो यहाँ पे कौन से वैल्यू जाते हैं, बड़े वाले वैल्यू के, कैश और बैंक ट्रांजैक्शन। तो छोटे वाले वैल्यू के कहां जाएंगे, छोटे वाले वैल्यू के लिए एक और सब्सिडरी बुक होता है, उसको बोलते हैं पेटी कैश।